اٹھ جائیں بھائی، سحری میں بس آدھا گھنٹہ ہی پڑا ہے، یہ نہ ہو کہ آج بھی آپ کو دیر ہو جائے۔ میں نیند کے آغوش میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک سے میری آپا مجھے ہلانے لگی۔ مجھے سحری کے لیے اٹھا رہی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے آدھے گھنٹے کا کہا تو میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا اٹھنے کا کیونکہ نیند مجھے بہت زیادہ آئی ہوئی تھی، لیکن میں روزہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ 2-3 دنوں سے میری رات کو بہت زیادہ دیر سے آنکھ کھل رہی تھی، اسی لیے مجھے جلدی جلدی ہی کھانا کھانا پڑتا تھا۔ آج بھی صرف آدھا گھنٹہ ہی رہتا تھا، میں نے اٹھ کے دانت برش کرنے ہوتے تھے، پھر ہی میں روزہ رکھتا تھا کیونکہ پورا دن تو پھر میں برش نہیں کر سکتا تھا۔ میں فوراً سے اٹھا اور باتھ روم میں گھس آیا۔ آپا کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھیں اور میری چھوٹی بہنیں بھی ان کا ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ میری 9 بہنیں تھیں اور میں ان کا اکلوتا بھائی۔ میری ساری بہنیں مجھ پہ جان چھڑکتی تھیں۔ ماں کا تو انتقال مجھے پیدا کرتے ہی ہو گیا تھا، لیکن ابا جی کا انتقال اس وقت ہوا جب میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اب تو میں جوان ہو گیا تھا۔ ابا جی کو گئے ہوئے بھی سالوں گزر چکے تھے۔ میری بڑی بہن ہی ہم سب کو پال رہی تھی۔ ہم 10 بہن بھائی تھے، 9 بہنیں اور 1 بھائی۔ میں سب سے چھوٹا تھا۔ جب میری پیدائش ہوئی تو ابا نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کروائی کیونکہ ابا کی پہلے ہی 9 بیٹیاں تھیں۔ سبھی ابا کو یہی کہتے تھے کہ نصیر، تمہاری تو بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ تمہارا بیٹا بھی ہوگا جو تمہاری نسل آگے بڑھائے گا۔ میرے باپ کو یہ طعنہ سننے کو ملتا تھا، یہ بھی میری آپا ہی مجھے بتاتی تھی۔ مگر جس دن میری پیدائش ہوئی تھی اس دن ہمارے گھر میں جشن کا سما تھا۔ پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی گئی، سبھی کے منہ بن کے رہ گئے کیونکہ سبھی ابا کو طعنہ دیتے تھے کہ صرف بیٹیاں ہیں، کبھی بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ جب ابا کو وارث ملا تو ابا نے گھر میں ایک بہت بڑی دعوت بھی رکھی جس میں سارے محلے داروں اور سارے رشتہ داروں کو بلایا گیا۔ یہ دعوت صرف اور صرف میرے پیدا ہونے کی خوشی میں رکھی گئی تھی۔ ابا میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور اسکول چھوڑنے کے لیے بھی مجھے خود جاتے تھے۔ میری سب سے بڑی بہن اس وقت جوان تھی جب میں پیدا ہوا تھا، اب تو میں بھی جوان ہو گیا تھا۔ میری بہنوں کی عمر کافی زیادہ تھی لیکن ابھی تک ان کے کہیں بھی رشتے نہیں ہو پائے تھے۔ نہ جانے ہمارے گھر میں کیا کمی تھی کہ کوئی رشتہ کرنے آتا ہی نہیں تھا۔ ہم بیچارے یتیم مسکین، کوئی بھی ہمارا ہمدرد نہیں تھا۔ مجھے اپنی بہنوں کو دیکھ کے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ ان کی شادی کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، لیکن میں بیچارہ بھی کیا کرتا؟ کہیں سے کوئی اچھا رشتہ ملتا تو ہی میں شادی کر سکتا تھا، مگر ایسا بالکل بھی نہ ہوا۔ نہ کوئی رشتہ ملا، نہ ہی شادیاں ہو پائیں۔ میں باتھ روم سے باہر نکلا تو کچن میں پہنچ گیا کیونکہ اس بار روزے سردیوں میں ہی آئے تھے۔ زیادہ سردیاں تو نہیں تھی لیکن سحری کے وقت سردی ہو جاتی تھی۔ میں کچن میں آیا تو پیچھے چارپائی پہ ہی بیٹھ گیا۔ آپا نے کھانا دیا تو میں جلدی جلدی کھانے لگا۔ میری بہنیں کھانا کھا چکی تھیں، وہ جلدی اٹھ جاتی تھیں۔ کھانا کھا کے میں نے آپا سے کہا تو انہوں نے میرے لیے چائے بھی بنا دی۔ میں چائے کا بہت زیادہ عادی تھا۔ جب کبھی چائے نہیں پیتا تھا تو میرے سر میں درد ہو جاتا، اسی لیے روزہ رکھنے کی وجہ سے میں سحری میں ہی چائے پی لیتا تھا کیونکہ میں صبح چائے نہیں پی پاتا تھا اور پھر جب روزہ کھولتا تو اس وقت بھی پی لیتا۔ آپا مجھے تھوڑی دیر میں چائے بھی بنا کے دے گئی تو میں نے چائے پی لی۔ مجھے کھانا کھاتے ہوئے وقت لگ گیا، میں بہت ہی سست تھا۔ دور دور سے آوازیں آ رہی تھیں کہ سحری میں صرف 5 منٹ پڑے ہیں۔ چائے وغیرہ پی کے میں صحن میں تھوڑی بہت واک کی اور پھر سے کمرے میں آ گیا۔ میری بہنیں کچن کا کام سمیٹ رہی تھیں۔ سحری کا کھانا کھانے کے بعد وہ کچن کی صفائی کر لیتی تھیں اور پھر نماز وغیرہ پڑھ کے سو جاتی تھیں۔ ہمارے گھر کا رمضان میں یہی معمول تھا، لیکن میں نماز پڑھ کے سوتا نہیں تھا بلکہ منڈی پہ چلا جاتا۔ ابا کے جانے کے بعد مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں گھر بیٹھ کے مفت کی روٹیاں توڑتا۔ ابا ہوتے تھے تو کما کے لاتے تھے، لیکن ابا کے جانے کے بعد میری بہنوں نے بڑی مشکل سے ہی مجھے اتنا بڑا کیا تھا، اسی لیے ہی میں نے اب اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں نے FSC کی ہوئی تھی لیکن اب مجھ میں دم نہیں تھا کہ میں اپنی پڑھائی پر اور خرچ کر سکوں۔ اب میں کمانا چاہتا تھا اور اپنی بہنوں کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ میرے لیے سب کچھ میری بہنیں تھیں اور ان کے لیے میں ان کا لاڈلا بھائی تھا۔ وہ میری ہر بات مانتی تھیں۔ آپا ہمارے گھر کی سب سے بڑی تھیں، ان کی بات پتھر پہ لکیر سمجھی جاتی تھی۔ میری ساری چھوٹی بہنیں مجھ سے ہنسی مذاق کرتی تھیں لیکن کوئی بھی آپا سے ہنسی مذاق نہیں کرتا تھا۔ وہ سنجیدہ تھیں، ان میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ ان کی شادی کی عمر گزرنے لگی تھی، ابھی تک ان کا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ وہ چڑچڑی ہو گئی تھیں، وہ بیچاری تو ہم سب بہن بھائیوں کو پالنے میں ہی لگی ہوئی تھیں۔ نہ جانے اس بیچاری کا کیا قصور تھا کہ ان کے نصیب میں یہ لکھا گیا۔ کمرے میں آ گیا تھا، میں نے وضو پہلے سے ہی کیا ہوا تھا کیونکہ جب میں کمرے میں آ رہا تھا تو میں نے باہر بیسن سے وضو کر لیا تھا۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی میں نے جائے نماز بچھا لی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مسجد ہمارے گھر سے تھوڑی دور تھی،
इसलिए कभी कभी सुस्ती हो जाती तो मैं नमाज घर में ही पढ़ लेता। आज भी मुझे ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं गया था, बल्कि घर में ही नमाज़ अदा कर ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने फ़ौरन से जाए नमाज़ नहीं समेटी, बल्कि हाथ उठा के अल्लाह के हज़ूर दुआ करने लगा। मैंने सबसे पहले अपनी बहनों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए दुआ की, इसके बाद ही अपने लिए। मैंने ढेर सारी दुआएँ की थीं, अल्लाह से बहुत सारी दुआएँ माँगने के बाद मेरे दिल को जब कुछ इत्मीनान हुआ तो मैंने अपने हाथ चेहरे पर फेर लिए। मैं अभी भी वहाँ से नहीं उठा, बल्कि अलमारी पे मैंने अपना कुरान पाक रखा हुआ था, उठाया और आके जाए नमाज़ पे ही बैठ गया। मैं ज़मीन पे बैठा था, लेकिन मैंने अपने इर्द-गिर्द कंबल ओढ़ रखा था। मैंने अपनी चारपाई से अपना कंबल भी उठा लिया था, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। मैं अब कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। मैं सोच चुका था कि कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा। आज 15वां रोज़ा था और मेरे 15 सुपारे पूरे भी हो चुके थे। मैं रोज़ाना का 1 सुपारा पढ़ता, क्योंकि मेरी ख़्वाहिश थी कि रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होते ही मेरा कुरान पाक भी ख़त्म हो जाए। मैं डेली 1 सुपारा पढ़ता। मुझे कुरान पाक पढ़ते पूरा 1 घंटा हो गया। मैं सुपारा मुकम्मल कर चुका था, इसलिए फ़ौरन से उठा और अपने इर्द-गिर्द शॉल लपेट ली। मैंने जराबें और बूट भी पहन लिए थे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। सुबह का वक़्त था, इसीलिए शायद कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। मैं कमरे से बाहर निकल आया तो कमरे की लाइट भी बंद कर दी। सहन में घुप अंधेरा था, क्योंकि अब धुंध फैल रही थी। सहरी के वक़्त तो इतनी धुंध नहीं थी जो अब बढ़ रही थी। आजकल ऐसे ही हो रहा था। सूरज 1-2 बजे जाके निकलता था और फिर पूरा दिन ही सर्दी रहती। इस बार रोज़े रखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि पूरे दिन में प्यास नहीं लगती थी। सर्दियों के दिन थे, बस थोड़ी बहुत भूख लगती थी। रोज़े बड़े अच्छे से गुज़र रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकला तो स्टोर रूम की तरफ चला गया, क्योंकि मैंने अपनी बाइक वहीं पे ही खड़ी की हुई थी। मैं स्टोर रूम के बाहर पहुंचा तो स्टोर रूम पे ताला लगा हुआ था। मैं भूल गया था अपने कमरे से चाबी लाना। रोज़ रात को ही हम ताला लगा के सोते थे, क्योंकि सभी लोग कमरों में सो जाते थे तो चोरी का खतरा होता था। मुझे अपनी बाइक से बहुत प्यार था, क्योंकि ये मेरे अब्बा की तरफ से एक आखिरी निशानी थी। मैं अपनी जान से भी ज़्यादा इसकी हिफाजत करता था, और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं और बाइक ख़रीद सकता। घर का गुज़ारा बड़ी मुश्किल से चलता था। मैं चाबी लाना भूल गया था, इसीलिए उल्टे कदम फिर से अपने कमरे में पहुंच गया। कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने ही चाबी पड़ी थी। मैंने फ़ौरन से चाबी उठाई और स्टोर रूम की तरफ आ गया। मैंने जल्दी जल्दी ताला खोला। मेरे हाथ तो ठंड से अकड़ रहे थे। चाबी भी बड़ी मुश्किल से मैंने ताले में लगाई थी। मेरी मोटरसाइकिल अंदर खड़ी थी। मैं मोटरसाइकिल पे बैठ गया और हेलमेट भी सर पे पहन लिया। आजकल हेलमेट की बहुत ज़्यादा सख्ती थी। जो कोई भी हेलमेट पहन के घर से ना निकलता तो पुलिस वाले चालान काट देते। मुझ गरीब की इतनी हैसियत भी नहीं थी कि मैं चालान के पैसे भर सकता, इसीलिए मैंने अपना हेलमेट ख़रीद दिया था। और वैसे भी ठंड बहुत थी, हेलमेट से मुझे बड़ा फ़ायदा होता था। सर को सर्दी ही नहीं लगती थी। मैंने बाइक घर से बाहर निकाली और आहिस्ता से बाहर से दरवाज़ा बंद किया, ताकि जब आऊँ तो खुद ही खोल के अंदर आ जाऊँ। जिस वक्त मैं घर आता था, मेरी बहनें उस वक्त सोई हुई होती थीं। रमज़ान मुबारक में हमारी यही रूटीन थी, वरना तो मेरी बहनें सुबह-सुबह ही सारे कामों में लग जाती थीं। मंडी पे मेरा 2 से 3 घंटे मुश्किल से काम होता था, क्योंकि वहाँ पर काम ही ऐसा था। बोली लगाना मेरा काम था, बोली लगा के मैं फ़ौरन ही घर आ जाता। उस काम से मुझे अच्छी कमाई होती थी और मैं अपने घर का पेट पाल रहा था। गुज़ारा तो बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन अब मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। वैसे कुछ दिनों से मैंने अपने दोस्त से बात कर रखी थी कि उसे कहीं कोई नौकरी का पता चले तो वो मुझे ज़रूर बताए। उसने मुझसे इस बारे में ज़िक्र भी किया कि उसके एक जानने वाले का किराना स्टोर है। वहाँ पे उसे एक लड़के की ज़रूरत है, लेकिन मैं अभी वहाँ पे देखने के लिए नहीं गया था। सोचा था कि मंडी से वापस आकर ही अली के साथ उसके जानने वाले की दुकान पे जाऊँगा, क्योंकि मंडी पे तो मेरा काम सुबह ही हो जाता था। मैं पूरा दिन ही घर में फ्री रहता था। मैं चाहता था कि मैं दूसरी जगह भी कहीं नौकरी करूँ, ताकि घर का गुज़ारा अच्छे से हो जाए। मेरी बड़ी बहन कपड़े भी सिलाई करती थी और मोहल्लेदार उन्हें कपड़े भी दे जाते थे। सभी हमें जानते थे, हम सालों से यहाँ रह रहे थे। इसीलिए ही सब मेरी आपा से ही कपड़े सिलवाते। मेरी दूसरे नंबर वाली आपा भी कपड़े सीती थीं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं सीती थीं कि लोग उनसे सिलवा सकें। मगर हाँ, वो शीला आपा के साथ मदद ज़रूर करवा दिया करती थीं। मेरी 4 बड़ी बहनें थीं, इसलिए मैं उन्हें आपा कहता था, लेकिन छोटी वालियों को मैं उनके नाम से पुकारता। बाइक सड़क पे चलती जा रही थी, मेरे पास मोटरसाइकिल के दस्ताने थे।
इसी लिए मेरे हाथ तो गर्म थे, लेकिन मेरी टाँगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि अभी काम करना ही छोड़ जाएँगी। मगर फिर ऐसा ना हुआ और मैं खैर खैरियत से मंडी पे पहुँच गया। मैंने मोटरसाइकिल एक महफूज जगह पे खड़ी कर दी और ताला भी लगा लिया। मैं अपने काम पे आ चुका था। 2-3 घंटे तो मेरे बहुत ही मसरूफ़ गुज़रे। मुझे तो साँस लेने का वक़्त भी नहीं मिलता था। ये वक़्त बड़ा ही मुश्किल होता था। अफ़रा-तफ़री का समा होता था, लेकिन 2-3 घंटे में ही सारा रश ख़त्म हो जाता। मैंने अपना काम किया तो दोपहर होने लगी। मेरे साथ के लड़के तो वहीं पे ही नाश्ता कर रहे थे। कोई चावल ले रहा था तो कोई हलवा पूरी, लेकिन मैं वहाँ पे बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करता था। आजकल तो वैसे भी रमज़ान था, मुझे रोज़ा था। वहाँ पर नाश्ता भी वही लोग कर रहे थे जो रोज़ा नहीं रखते थे। और मुझे हैरत तो होती थी कि आखिर सर्दियों के इतने छोटे दिनों में रोज़ा कोई क्यों नहीं रखता। लेकिन ये उनका और अल्लाह का मामला था। मैं उनमें बोलना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कभी मुंह पे किसी को कुछ नहीं कहा, बल्कि दिल ही दिल में सोचता था। कभी कभी मेरे जहन में ये भी ख्याल आता कि किसी की मजबूरी भी तो हो सकती है। मैं रमज़ानुल मुबारक से पहले हमेशा ही घर आके नाश्ता करता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं बाहर ऐसे ही पैसे ज़ाया करते फिरूं। मैं बड़ी कंजूसी से खर्च करता था। ऐसी बात नहीं थी कि मैं कंजूस था, बल्कि मैं कफ़ायतशार था। मैं अपने घर के खर्चे को जानता था और ये भी जानता था कि मेरी कमाई कितनी है। इसीलिए ही मैंने अपना हाथ रोक रखा था। और वैसे भी घर का खाना मुझे अच्छा लगता था। मेरी आपा भी मुझे सख्ती से कहती थी कि बाहर का खाना ना खाऊं। वो तो मुझे इसीलिए ही मना करती थी ताकि मैं बीमार ना हो जाऊं। लेकिन मैं इस वजह से खुद को रोके हुए था ताकि मैं कुछ पैसे बचा सकूं। काम हुआ तो मैंने बाइक उठाई और घर के लिए निकल पड़ा। सूरज थोड़ा-थोड़ा निकल रहा था, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे धूप नहीं निकली थी। मुझे घर आने में 15 मिनट तो लग गए थे, क्योंकि मंडी घर से काफ़ी दूर थी। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो दरवाज़ा बाहर से ही बंद था, जैसे मैं बंद करके गया था। मैंने दरवाज़ा खोला और बाइक को अंदर खड़ी करके फिर से अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने बाइक को जाकर स्टोर रूम में खड़ा कर दिया और अपने कमरे में आ गया। मैं कमरे में दाखिल हुआ ही था कि अचानक से मेरी छोटी बहन कमरे में आई और मुझे ये कह के चली गई कि आपा बुला रही हैं। मेरे कपड़े बहुत गंदे हो रहे थे, क्योंकि मंडी में मेरा काम ही ऐसा था। मुझे वहाँ सब्जियों के गट्ठे खुलवाने पड़ते और उनकी बोली लगाने के लिए, इसीलिए ही मिट्टी मेरे कपड़ों पे लग जाती। मेरे कपड़े ख़राब थे, इसीलिए मैं फ़ौरन से कपड़े तब्दील करने गया और फ्रेश होकर कमरे में आ गया। मेरी सारी बहनें एक ही कमरे में सोती थीं। वो हॉल नुमा एक कमरा था, लेकिन मेरा कमरा नॉर्मल साइज़ का था, क्योंकि मैं अकेला ही इसमें रहता था। हमारा घर न बहुत ज़्यादा बड़ा था, ना ही बहुत छोटा, बल्कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक बहुत ही ज़बरदस्त था। मैं जैसे ही आपा के कमरे में गया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि आपा लेटी हुई थीं और मेरी 3 बहनें उनके पाँव दबा रही थीं। मैं जल्दी से गया और जाके पूछने लगा कि आपा, आखिर आपको क्या हुआ है? लेकिन मेरी बहनों ने मुझे बताया तो मेरे होश उड़ गए। भाई, आपा को कल से बुखार है, लेकिन वो डॉक्टर के पास दिखाने ही नहीं जा रही। रात को भी मैंने उनसे कहा था कि रोज़ा ना रखें, लेकिन रोज़ा उन्होंने ज़बरदस्ती रख लिया। उस वक्त तो वैसे उनकी तबीयत भी इतनी ख़राब नहीं थी। ना जाने अब क्यों इतनी तबीयत ख़राब हो गई है। मेरी आपा चारपाई पे लेटी हुई थी। मैंने उनके माथे पे हाथ रख के देखा तो मेरा हाथ ही जल गया। उन्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। अलीशा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपा की तबीयत ठीक नहीं है? मैं खुद उनसे बात करता, फिर मैं देखता कि ये कैसे मेरी बात नहीं मानती। हमारी देखभाल में तो ये खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। ना जाने इन्हें क्या हो गया है। मैं अब अपनी बहन को उठा के उसकी जगह बैठ गया था और आपा के पाँव दबाने लगा था। आपा ने नीम बंद आँखों से भी मुझे देख लिया कि मैं उनके पाँव दबा रहा हूँ। असद, तुम्हें पाँव दाबने की क्या ज़रूरत है? छोड़ो बस, मैं ठीक हूँ। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये जुमला अदा किया। आपा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं? आपको आज रोज़ा नहीं रखना चाहिए था। मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मैंने ये कहा तो वो इनकार करने लगी, लेकिन मैं भी अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ था। मेरे डट जाने की वजह से आपा को मेरी बात माननी पड़ी थी। थोड़ी ही देर में मेरी बहन ने उन्हें बुर्का पहना दिया तो मेरी छोटी आपा और बड़ी आपा दोनों ही मेरे साथ बाइक पे बैठ गईं। छोटी आपा भी मेरे साथ इसीलिए आई थी ताकि आपा को पकड़ के बैठ सकें, क्योंकि उनकी तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो खुद बाइक पे बैठ सकती। थोड़ी ही देर में हम हस्पताल पहुंच गए, क्योंकि अस्पताल हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। वहां पहुंचे तो डॉक्टर के कमरे के बाहर नंबर लगे थे, काफ़ी लंबी लाइन थी। इसके बाद ही आपा की बारी आनी थी। मैंने आपा से कहा भी था कि मैं उन्हें प्राइवेट किसी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कह दिया था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी अस्पताल जाएंगी।
ये भी मैं जानता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वो मेरे पैसे बचाना चाहती थीं। वो जानती थी कि मैं कैसे मुश्किल से पैसे कमाता हूँ। मैं आपा की ज़िद करने पे अस्पताल तो पहुँच चुका था, लेकिन अब लंबी लाइन का हमें इंतज़ार करना था। अस्पताल में हमें काफ़ी देर लग गई थी। आपा की बारी आई तो मैं आपा का हाथ पकड़ के उन्हें अंदर ले गया। डॉक्टर ने बड़े इत्मीनान से बैठ के आपा का चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बहुत तेज़ बुखार है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी हो रही है। मगर फिर डॉक्टर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुन के मैं भी बहुत परेशान हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आपा को बुखार के साथ डिप्रेशन भी है। डॉक्टर तो बार बार ही कह रहा था कि रोज़ा तुड़वा देते हैं, क्योंकि आपा के लिए कुछ खाना पीना बहुत ज़रूरी था। और वैसे भी अलीशा बता रही थी कि आपा ने सहरी में भी बहुत कम खाना खाया था। आपा ज़िद पे अड़ी हुई थीं कि वो रोज़ा बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगी। इसीलिए उनकी ज़िद का एहतराम करते हुए हमने उन पे ज़बरदस्ती नहीं की थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी थी जिनमें एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी शामिल थीं। मैं आपा को लेके घर आ चुका था। आपा क्या करती हैं आप? डॉक्टर की बात तो आपने सुनी थी ना? आप किस चीज़ की टेंशन ले रही हैं? मैंने जाते साथ ही आपा से सवालात शुरू कर दिए। एक मैं ही था जो उनसे बेधड़क बात करता था, वरना तो मेरी सारी बहनें उनसे थोड़ा डरती थीं। मैं भी उनसे डरता था, लेकिन अब मुझे उनकी फ़िक्र हो रही थी। इसीलिए ही मैं उनसे थोड़ा सख्ती से बात कर रहा था। ना जाने वो किस चीज़ की टेंशन लेके बैठ गई थीं। असद अभी तुम छोटे हो, तुम नहीं समझ सकते। आखिर मुझ पे क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? तुम सबकी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पे ही हैं। ना जाने कब मैं तुम लोगों के फ़र्ज़ से आज़ाद होंगी। आपा ने ये कहा तो मुझे सारी बात समझ आ गई। मैं अपना सर अपने दोनों हाथों में जकड़े बैठ गया। आपा, आपको हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपने सारी ज़िंदगी हमारी खिदमत में और हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। और रही बात शादियों की, तो ये हमारे बस में थोड़ी है कि हम जब चाहें हमारी शादी हो जाए। ये तो अल्लाह के बस में है, जब उसे मंजूर होगा तो रिश्ते भी हो जाएंगे। आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही टेंशन में रहीं और बीमार पड़ती गईं तो फिर आप जानती हैं कि क्या हो सकता है। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आप जितना हमारे लिए कर चुकी हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। आपा को बड़े प्यार से मैं अब समझा रहा था। उनकी परेशानी जायज़ तो थी, लेकिन हमारे बस में ये नहीं थी। हमारी शादियाँ नहीं हो पाई थीं तो इसमें हमारा क्या कसूर था? मेरी बेचारी बहन इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी शादी की उम्र भी निकल चुकी थी। उस बेचारी ने तो अपनी सारी ज़िंदगी ही हम सब बहन भाइयों को पालने में गुजार दी। हमारे मोहल्ले या रिश्तेदारों में से किसी ने भी उनका रिश्ता नहीं मांगा था। कभी कभी तो मुझे फुप्पो पे हैरत होती थी। उनके 4 बेटे थे, उन्होंने मेरी एक बहन का भी रिश्ता नहीं मांगा। वो गैरों के घरों से रिश्ता लेके आई अपने बेटों का, लेकिन उन्हें मेरी बहनें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थीं। गुर्बत के आगे तो फिर अपने खून भी सफ़ेद पड़ जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ। पूरे ख़ानदान में हम से सबसे ज़्यादा गरीब थे, इसलिए कोई भी हमारे घर रिश्ता नहीं करना चाहता था। मेरी बहनों की आधी उम्र निकल चुकी थी। 1-2 बहनें थीं जिनकी उम्र अब शादी के लायक थी, और मैं भी था जिसकी उम्र शादी के लायक थी। 1-2 जगह से तो मेरे रिश्ते भी आए, लेकिन वो लोग ये कह के मना कर देते कि बहनें ज़्यादा हैं, लड़की तो फंस जाएगी। मुझे हैरत होती कि आखिर ये लोग कैसे हैं जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वो तो मेरी बहनों की मोहब्बत से बिल्कुल ही वाकिफ़ नहीं थे। वो ये नहीं जानते थे कि मेरी बहनें मुझ पर जान छिड़कती हैं। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने को था और ईद में सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन ही बड़े थे। रमज़ान का महीना तो पर लगा के उड़ता गया। हम कितने महीनों से रमज़ान का इंतज़ार करते रहे, और छू मंतर से गुज़र गया, पता ही नहीं चला। खैर से हम सब ने सारे रोज़े रखे। ईद की शॉपिंग भी हम सब कर चुके थे। मैंने अपनी बहनों को पैसे दे दिए और वो शॉपिंग कराई थी। मैंने अपनी शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि मेरे सेठ ने कहा था कि वो ईद के कपड़े अपने सारे वर्कर्स को खुद ही देगा। इसीलिए ही मैंने अपने कपड़े नहीं खरीदे थे। मैं कितने दिनों से अपनी बहनों के लिए पैसे जमा कर रहा था, ताकि मेरी सारी बहनें ईद के लिए कपड़े खरीद सकें, और उन्होंने ख़रीदे भी थे। जुम्मे वाले दिन मुझे भी सेठ की तरफ से ईद का जोड़ा मिल गया, तो हम सब की शॉपिंग मुकम्मल हो गई। जिस दिन मुझे जोड़ा मिला उसी दिन ही जाके मैंने दर्जी को दे दिया, क्योंकि ईद में 1-2 रोज़ पड़े थे और रश भी तो दर्जियों के पास ज़्यादा था। 2 दिन गुजरने का तो पता ही न लगा। आज चांद रात थी। मेरी बहनों ने पूरे घर की सफाई अच्छे से की। रात को मेरी बहन ने मेरे कपड़े इस्त्री कर लिए, क्योंकि मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले दर्जी से अपने कपड़े लेकर आया था, और फ़ौरन ही मेरे कपड़े इस्त्री हो भी गए थे। सबको बेसब्री से ईद का इंतज़ार था। रात को मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसीलिए मुझे नींद बहुत जल्दी आ गई। लेकिन जब मेरी सुबह आँख खुली तो अज़ानें हो रही थीं।
अज़ानों की आवाज़ जैसे ही मेरे कान में पड़ी तो मैं फ़ौरन से उठा और बाथरूम में घुस गया। बाथरूम से निकला तो वज़ू वग़ैरह करके ही कमरे में आया, क्योंकि नमाज़ का वक़्त भी हो चुका था। मैंने कमरे में नमाज़ अदा की और मामूल के मुताबिक कुरान पाक की तिलावत भी की। कुरान पाक की तिलावत करके मैं फिर से गुस्लख़ाने में घुस गया, क्योंकि मैंने नहाना भी था। ईद नमाज का वक़्त 8 बजे का रखा गया। नहा धो के मैं कमरे में आके तैयार हो गया। मेरी बहनें तो रसोई में ही घुसी हुई थीं। मैंने तैयारी की तो नमाज का वक़्त भी हो गया और मैं मस्जिद के लिए घर से निकल पड़ा, क्योंकि मस्जिद थोड़ी दूर थी और मुझे जाने में वक़्त लगता था। मैं मोटरसाइकिल पे नहीं बल्कि पैदल ही गया था, क्योंकि वहाँ पर मोटरसाइकिल चोरी होने का ख़तरा था। पहले भी मेरे एक दोस्त की मोटरसाइकिल ऐसे ही मस्जिद के बाहर से एक दफ़ा चोरी हो गई थी। इसलिए मैं रश वाले दिन मस्जिद मोटरसाइकिल नहीं लेके जाता था बल्कि पैदल ही जाता था। ईद की नमाज़ अदा करने के बाद सभी एक दूसरे से ईद मिले तो मैं भी ईद मिल के घर आ गया, क्योंकि मैंने अभी अपनी बहनों से भी ईदी मिलनी थी। मेरी बहनें मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज़ थीं। घर गया तो जाते साथ ही मेरे हाथ में शीर खुरमे का कटोरा थमा दिया गया। शीर खुरमा मुझे बहुत पसंद था। मैंने जल्दी से वो खा लिया और सब बहनों को ईदी दी। मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन मैंने अपनी औकात के मुताबिक अपनी सारी बहनों को ईदी दी। ये बहनों का हक होता है जो भाइयों पे होता है। मेरी बहनों ने भी मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी थीं। वक़्त बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा था। एक दिन जब मैं मंडी से वापस आया तो आते साथ ही खाना खा के अली के घर पहुँच गया, क्योंकि अली ने मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ ही अपने जानने वाले की दुकान पे चलेगा। उस वक़्त रमज़ान में हम उस दुकान पे गए थे तो उन्होंने कहा था कि ईद के बाद आना। ईद तो गुज़र चुकी थी, इसलिए ही मैं अली से कह चुका था कि आज हम ज़रूर जाएँगे। अली भी मान गया। इसीलिए ही मैं खाना खा के घर से निकल गया। अली फ़ौरन ही अपने घर से बाहर निकल आया तो हम दोनों ही बाइक पर बैठ के स्टोर में पहुंच गए। लेकिन वहां जाके मुझे ऐसी खबर मिली जिसे सुन के मेरे तन बदन में खुशी की लहर दौड़ गई। सेठ ने मुझे नौकरी पे रख लिया। मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या ही बात थी। मंडी से भी मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेता और अब तो मुझे नौकरी मिल गई। घर लौटते वक्त मैंने एक मिठाई का डिब्बा लिया, क्योंकि मैं अपनी बहनों को आज बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला था। मैं ये नहीं जानता था कि मेरी बहनों के पास भी एक बड़ी खुशी की खबर होगी। मैं घर आया तो मिठाई मेरे हाथ में थी। मेरी बहन ने मेरे हाथ में मिठाई का डिब्बा देखा तो फ़ौरन से मेरे हाथ से ले लिया। भाई ये किस लिए है? वो डिब्बा खोल के खा रही थी और मुझसे पूछ भी रही थी। लेकिन मैं फ़ौरन से कमरे में चला गया जहाँ पे आपा बैठी थी। मैं सबसे पहले ये बात आपा को बताना चाहता था। आपा, आज मुझे एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है। तनख्वाह भी अच्छी मिल रही है और मैंने मंडी से आके ही वहाँ जाना है। मैंने ये कहा तो आपा भी बहुत खुश हुई और मेरे सर का बोसा लेने लगी। असद, कभी कभी मुझे तुम पे बहुत तरस आता है और तुम पर हम सबकी जिम्मेदारियां हैं। तुम बेचारे हमारी जिम्मेदारियां पूरे करते करते ही पिस जाओगे। आपा ने ये कहा तो मेरी आंखों में नमी आ गई। आपा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको मेरा क्या दुख दिखाई दे रहा है? आपको अपनी कुर्बानियां याद नहीं है? क्या आपने हम सब बहन भाइयों की खातिर अपनी ज़िंदगी गंवा नहीं दी और अभी भी हमारी ही फिक्र आपको सता रही है? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। अब ये मेरा फ़र्ज़ भी है, मैं इस घर का बेटा हूँ और आप सबकी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पे हैं। अलीशा से मैंने मिठाई का डिब्बा लिया और आपा का मुंह मीठा किया, लेकिन आपा ने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुन के मेरे चेहरे पर खुशी और भी बढ़ गई। असद, हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। सुना है कि लड़की बहुत सुलझी हुई है और अच्छी है। कुछ दिनों में उनके घर जाना है। अल्लाह करे बात बन जाए, तुम दुआ करना। आपा ने ये कहा तो मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आपा के सामने मैंने इस बात में सर हिला दिया था। मेरी खुशी मुझसे छुपाए नहीं छुप रही थी। मैं फ़ौरन ही वहाँ से उठ के कमरे में आ गया। कमरे में आते साथ ही मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और खुशी से उछलने लगा। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरी ये खुशी आरज़ी एक दिन आपा और मेरी दो और बहनें मेरा रिश्ता देखने उस घर पहुँच गईं। बड़ी खुशी-खुशी वहाँ गई थी और उन्होंने जाते वक़्त मिठाई भी ली थी। मैं खुश हो रहा था कि शायद आज मेरी बात पक्की हो जाएगी। मेरे दोस्तों में एक मैं ही गँवारा था, जिसकी अभी तक मंगनी भी नहीं हुई थी। मैं बड़ी बेसब्री से ही पूरा दिन आपा का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब वो लोग वापस आए तो उनके चेहरे पे परेशानी दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पे आई परेशानी देख के तो मैं भी परेशान हो गया। मैंने आते साथ ही उनसे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मैं उन्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। जब आपा को घर आए हुए पूरा आधा घंटा हो गया, तो थोड़ी देर बाद मैं कमरे में गया ताकि उनसे हाल चाल ले सकूं। आपा, आज खाने में क्या बना है? मैंने जाते साथ ही ये कह दिया, क्योंकि मैं डायरेक्ट उनसे इस रिश्ते की बात नहीं करना चाहता था। मुझे शर्म महसूस हो रही थी।
पता नहीं अलीशा वगैरह ही कुछ बना रही हैं। मैं तो लड़की देखने गई थी, इसीलिए ही थक गई हूँ। जिस काम के लिए गए थे वो काम भी नहीं बन पाया। आपा ने उदास लहजे में कहा तो मैं वहाँ पे बैठ गया। आपा क्या मतलब के काम नहीं बन पाया? मैं मासूम होने का नाटक कर रहा था, हालांकि मैं जानता था कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। असद वहाँ रिश्ते के लिए तो गए थे, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे। जैसे ही उन्होंने नंदों के बारे में सुना तो रिश्ते से साफ साफ ही मना कर दिया। अब हम बहनें ही अपने भाई की किस्मत के आड़े आ रही हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी वजह से तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा। आपा की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं फ़ौरन से गया और आपा को अपने गले से लगा लिया। आपा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शायद वो रिश्ता हमारे नसीब में नहीं था, इसीलिए ही नहीं हो पाया। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोग मेरा मान हैं, मेरा फ़ख्र है, ना कि मेरे नसीब में आड़े आई हुई हैं। जहाँ नसीब होगा तो मेरी शादी भी हो जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह के वहाँ से बाहर निकल आया। परेशानी तो मुझे भी हुई थी, लेकिन मैंने ज़ाहिर बिल्कुल भी नहीं की थी। और वैसे भी मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। उनके बारे में मैं एक बहुत ही गलत बात नहीं सुन सकता था। वक्त के साथ साथ आपा और मेरी बहनों ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। हर कोई मेरी बहनों को देख के डर जाता कि 9 बहनें हैं, लड़की तो ज़लील हो जाएगी। कोई तो मुँह पे इनकार कर देता, तो कोई बहाने-बहाने से टाल-मटोल करके ही इनकार करता। बहरहाल मेरा रिश्ता भी अभी कहीं पे पक्का नहीं हुआ था। जब मैं मंडी से वापस आया तो आपा ने मुझे अपने कमरे में ही बुला लिया। अभी तो मैंने खाना भी खाना था और फिर दुकान पे जाना था, लेकिन आपा के बुलाने पर मैं कमरे में पहुँच गया। आपा के चेहरे से तो यही लग रहा था कि आज वो मुझसे कोई बहुत ही संजीदा बात करने वाली हैं। असद, मैंने आज तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आपा ने ये कहा तो मैं ठिठक गया। आपा, आपको इतनी तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं। आप खुल के मुझसे जो बात करना चाहती हैं, कर सकती हैं। मैं बड़ी तवज्जो के साथ उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही कि मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया। असद, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक जगह रिश्ता देख रखा है, अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ पे जाऊँ। लेकिन हाँ, निकाह फ़ौरन ही होगा। तुम तो जानते हो कि कोई भी रिश्ता करने को तैयार नहीं, हर कोई अपनी बहनों की वजह से रिश्ते से डर जाता है। लेकिन जहाँ मैं रिश्ता करने का सोच रही हूँ, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम मुझे रज़ामंदी दो तो मैं वहाँ पर जाऊँ। आपा ने ये कहा तो मैं बिल्कुल खामोश हो गया और बस इस बात में ही सर हिला दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जीते रहो, अब जाओ, जो काम करना है अपना करो। आपा चारपाई से उठी और मेरे सर का बोसा लेने लगी। उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दी तो मैं वहाँ से उठ के चला गया। वक्त तो जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। अगले दिन मुझ पे ऐसी हकीकत खुली जिसे कबूल करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मुझे मजबूर होकर कबूल करना पड़ा था। अगले दिन जब मैं मंडी से वापस आया तो घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। मैं कमरे में गया तो मेरी सारी बहनें एक कमरे में बैठी थीं, लेकिन वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की भी थी जिससे नज़रें झुकाई हुई थी। मैं उस लड़की को देख के हैरान रह गया। मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा था। मैं फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला तो आपा मेरे पीछे-पीछे मेरे कमरे में ही आ गईं। असद, तुम्हारा अभी थोड़ी ही देर में निकाह है। लड़की घर में मौजूद है। बेचारी यतीम लड़की है और गरीब भी। इसके आगे-पीछे कोई नहीं और इसे हम सब से भी कोई एतराज़ नहीं। बेचारी गूंगी लड़की है। आपा ने ये कहा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आपा गूंगी है? मैंने बस इतना ही कहा और हैरत से उन्हें देखने लगा। हाँ असद, गूंगी है बेचारी, गरीब भी है। हमें सवाब होगा अगर इसका घर बस जाएगा तो। आपा हुक्म सुना के वहाँ से चलती बनी और जाते वक्त ये भी कह दिया कि अभी 1 घंटे में ही मेरा निकाह है। मेरे कपड़े इस्त्री होकर मेरे कमरे में पड़े थे। सारे इंतज़ामात हो गए। सादगी से निकाह होना था। मैं अपने कमरे में बिल्कुल तैयार बैठा था। थोड़ी देर में मेरी बहन आके मुझे कमरे से बुला गई तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ा। वो लड़की तैयार होके बैठी थी, दरमियान में कपड़ा लटका गया था और दूसरी साइड पे मुझे बिठाया गया था। निकाह सादगी से हुआ था, कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। निकाह हो गया तो निकाह हाँ भी वहाँ से चले गए। मेरे घर में मेरी बीवी आ चुकी थी, लेकिन मुझे अपनी शादी से ज़रा भी खुशी नहीं थी। वो लड़की प्यारी तो थी, मगर वो लड़की गूंगी थी। मेरी बहनें बहुत ज़्यादा खुश थीं। उन्हीं की खुशी में ही मुझे खुश होना पड़ा। मेरी ज़िंदगी मामूल से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई थी। अब मेरी ज़िंदगी में एक लड़की शामिल हो गई थी। बाकी सब तो मामूल के मुताबिक होने लगा, मगर एक बात थी जो मुझे परेशान करती थी। रात को जब सब सो जाता तो मेरी बहन आके मेरी बीवी को उठा के चली जाती, लेकिन मेरी बीवी पूरी रात वापस ना आती और सुबह बस किचन में ही नज़र आती। मुझे हैरत होती कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन मैं कितने दिनों से इग्नोर कर रहा था क्योंकि मुझ में आपस से ये सब पूछने की हिम्मत नहीं थी। मेरी बीवी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती और मैं भी घर से बाहर रोज़ी के चक्कर में घूमता फिरता रहता।
धीरे धीरे घर की फ़िज़ा तब्दील होने लगी। मैं खुद को थोड़ा नफसियाती बना रहा था। मेरी बीवी मुझे अजीब सी खौफज़दा महसूस होने लगी थी और अब भी मेरे ज़हन में वो सवाल घूमते थे कि आखिर मेरी बहनें मेरी बीवी को रात के वक़्त कहाँ ले जाती हैं। एक दिन मैं इस निज़ाम से तंग आ गया। सुबह जब मेरी बीवी किचन में खड़ी काम कर रही थी तो मैं उसके पास पहुँच गया। मेरी बहनें भी वहीं पे खड़ी काम कर रही थीं, लेकिन मैंने बड़ी एहतियात से अपनी बीवी से इस बारे में पूछना चाहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी शक्ल से वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। ये तो मामूल बनता जा रहा था। मेरी बीवी मुझे ऐसे महसूस होती थी जैसे वो यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि ज़बरदस्ती लाई गई है। वो बेचारी तो बोल भी नहीं सकती थी, इसीलिए ही मुझे अपने गम नहीं बता पाती थी। मेरी बहनें तो मेरी शादी के बाद से पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगी थीं। आज भी जब रात को मैं सोया हुआ था तो अचानक से मेरी नींद खुली। मेरी एक बहन दरवाज़े पे आई तो मेरी बीवी फ़ौरन से उसे देख के उठ के कमरे से बाहर चली गई। पूरी रात मैं उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो कमरे में ना आई। सुबह जब मैं उठा तो वो किचन में खड़ी काम कर रही थी। मैं उससे पूछने की कोशिश करता तो वो कुछ भी ना बताती और बस खुद को मसरूफ़ कर लेती। अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं इस मामले की जड़ तक जाना चाहता था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं खुद ही इस मामले को हल कर लूँगा। रात जब मैं कमरे में सोने के लिए आया तो मैं सोया नहीं, बल्कि सोने का नाटक किया। मैं खर्राटे ले रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोया हुआ नहीं था, बल्कि जाग रहा था। आज मैं देखना चाहता था कि आखिर मेरी बहनें मेरी बीवी को लेके कहाँ जाती हैं और आखिर वो इतनी खौफज़दा क्यों होती है। मैं सोया हुआ था, मेरी बीवी भी बिल्कुल मेरे पहलू में सो रही थी। फिर अचानक से घड़ी पे 12 बजे तो मेरी एक बहन दरवाज़े पे आई और हल्की-सी दस्तक दी, जिससे मेरी बीवी फ़ौरन ही अपने बिस्तर से उठ के बाहर चली गई। मेरी बहन जैसे ही मेरी बीवी को लेकर गई तो थोड़ी ही देर में मैं भी आहिस्ता-आहिस्ता से कमरे से बाहर निकल आया। मैं कमरे से बाहर तो निकल चुका था, लेकिन बाहर बिल्कुल अंधेरा था। मेरी बहनों के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक कदम लेता अपनी बहनों के कमरे के पास पहुँच गया, लेकिन मैंने खिड़की से झाँक के देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। आपा, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊँ कि मैं आपके भाई को आपके खिलाफ़ नहीं भड़काती। जैसा आपने कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। मैंने तो उनके सामने ये भी सच नहीं खोला कि मैं बोल सकती हूँ। मैं आपकी सच्चाई को सच्चाई मान के ही आज तक ये साबित कर रही हूँ कि मैं गूंगी हूँ। आखिर आपको मुझ पे यकीन क्यों नहीं आता? आयशा को अपनी नज़रों के सामने बोलता देख के तो मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा। मेरे ज़हन में तरह तरह के ख़यालात आ रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मुझे अंदर जाना भी चाहिए कि नहीं। एक दिल कर रहा था आज जाके राज़ फ़ाश कर दूँ और हकीकत से पर्दा उठा लूँ, तो दूसरा दिल कर रहा था कि अगर मेरी बहनों के खिलाफ़ ही कुछ निकल आया तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि मैं अपनी बहनों के खिलाफ़ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर अब मुझसे ये सच बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मेरी बीवी बोल सकती थी और मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला गया। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोला तो सामने बैठी मेरी सारी बहनें खौफ़ज़दा हो गईं। भाई, आप यहाँ? मेरी छोटी बहन ने ये कहा और जाके आपा के पीछे छुप गई। आपा, ये सब क्या हो रहा है? मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया? आयशा बोल सकती थी तो मुझसे क्यों छुपाया गया? आखिर ये क्या माजरा है? मैं सवाल पे सवाल किए जा रहा था। आयशा खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी, लेकिन आपा ने एक ऐसी बात कही जिसे सुन के मेरे होश उड़ गए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि आपा ऐसा भी कर सकती हैं। असद, हम तुम्हारी मोहब्बत में ही इस हद तक बढ़ गए कि ये करने पे मजबूर हो गए। दरअसल जब हर घर से यही बात सुनाई देती कि तुम्हारी बहनें हैं और तुम्हारे रिश्ते के आड़े आती हैं, तो मुझे बहुत दुख होता। लेकिन जब मुझे इस लड़की के बारे में पता लगा तो मैंने हमदर्दी में ही इसे तुम्हारे निकाह के बारे में सोचा। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ये खौफ था कि जब ये शादी होके घर में आएगी तो कहीं हमारे खिलाफ तो में ना कर दे, फिर हम सब कहाँ जाती। मुझे खौफ सता रहा था, इसीलिए ही मैंने आयशा से वहीं यतीम खाने में ही एक मुआहदा किया कि तुम सारी ज़िंदगी गूंगी बन के रहोगी, कभी भी ये सच किसी के सामने नहीं आने दोगी कि तुम बोल सकती हो। इस तरह हमारे घर के मसाइल भी नहीं बढ़ेंगे और मुझे ये यकीन था कि ये तुम्हें हमारे बारे में भड़का भी नहीं पाएगी। आपा ने ये कहा तो मुझे यकीन ही नहीं आया। आपा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं आपके बारे में गलत क्यों सोचता? आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल के अच्छा नहीं किया। वो मेरी बीवी है, मेरी आंखों में नमी आ गई। मुझे तो बहुत बड़ा झटका लगा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा भी कर सकती हैं। असद, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो। हमारी चाहत गलत नहीं थी, बस हमसे थोड़ी गलती हो गई, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी मोहब्बत में। मुझे एक खौफ था कि कहीं तुम अपनी बीवी की बातों में आकर हम सबको घर से बाहर ना निकाल दो। आपा रो रो के अब मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आपा, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ।
मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये कदम क्यों उठाया, लेकिन रोज़ रात को आयशा को बुलाकर लाने का मकसद क्या था? मैं अब उनसे वो राज़ पूछने लगा जिसके लिए मैं आज सोया नहीं था। लेकिन आपा ने कहा कि वो आयशा को रोज़ उस वक़्त इसलिए लाती ताकि उसे समझा सकें कि वो कभी भी हमारे बारे में तुम्हें ना भड़काए और कभी भी ये राज़ तुम्हें ना बताए कि वो बोल सकती है। हम इस वक़्त उसे इसीलिए लाते थे ताकि तुम सो जाओ और ये ना देख सको कि आयशा बोल भी सकती है। अब सारी हकीकत खुल के सामने आ चुकी थी। मेरे ज़हन के सारे सवालात दूर हो चुके थे और आपा ने मुझसे और आयशा से माफ़ी भी माँग ली थी। घर का माहौल अब पहले जैसा होने लगा। वक़्त बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा था। अब इस वाक़ये को पूरा 1 हफ़्ता गुज़र गया। हमारे घर की फ़िज़ा तो मुकम्मल ही बदल गई। घर में बिल्कुल सुकून फैल गया। आयशा भी अब खुल के ज़िंदगी गुज़ार रही थी। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा होने लगी। अब उसके चेहरे पे मुझे सुकून दिखाई देता, जो पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। आहिस्ता-आहिस्ता मेरी बहनों के रिश्ते भी आने लगे। खुदा की रहमत से हमने एक यतीम और बेसहारा को अपने घर का फ़र्द बनाया। इसीलिए अल्लाह ने हम पे रहम किया और मेरी बहनों के रिश्ते भी होने लगे। सच कहते हैं जब आप किसी के लिए सुकून या सहारा बनते हैं तो फिर अल्लाह भी आपकी हर मुश्किल को आसान कर देता है। जैसे हमारे घर की मुश्किल को अल्लाह ने आसान किया। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है।